Hi kids, welcome to Let's Crack CBSE 9th and 10th, and this is your number one channel for the aspirants of CBSE 2021. Why? Because here you get the latest updates सबसे पहले, okay, about your CBSE boards exam. So yes kids, आज हम लोग nationalism in India के 5 marks question करने वाले हैं, which will be followed by quiz. ओके तो इनिशियली हम लोग 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले 5 ईयर्स में जो सबसे ज़्यादा पूछे गए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो हम लोग करने वाले हैं आज. एंड 25 questions I will be discussing over here, and after that we are going to have a quiz. Okay, so I'll start the session with my introduction. My name is Rashmi Singh, your teacher. RSYT is my code. So whenever you are going to take a subscription on an academy, if you apply this code, you are going to get a 10% discount. Yes, okay. And here's a brief introduction about myself, that I have done BTech in electrical engineering, and I've also worked in many of the power plant industries, and I have been teaching to the students now, like as of 8 years of now, social science. Why? Because I love this subject. Okay, and if you want to get to know a bit more about me, please go to this link. It is there in the description box, and follow this link so that you can get the regular updates about my classes. Okay kids, नाउ अगर आपको अपनी तैयारी बेहतर से करनी है, बेहतरीन क्लास 10 के लिए, और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो तुम, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ एन अकेडमी, और यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मेंटोर मिलते हैं जो आपके पर्सनल मेंटोर होते हैं. सो दैट पर्सन इज़ गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल ऑफ योर CBSE जर्नी. पूरा आपको पढ़ाएंगे, वो 10, 11, 12 के लिए आपको गाइड करेंगे. So these are the price chart for the iconic subscription, and these are the price chart for the plus subscription. So whatever suits you, just go and take that subscription. But don't forget to use the code RSYD, because once you use this code you get a 10% discount. So you just need to download the app and select CBSE class 10 in the manage goal, click on get subscription. Third step is applying the code after checking the duration, like if you can go for 2 year or 1 year. एंड RSYT कोड यूज़ करोगे 10% डिस्काउंट मिलेगा, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा ये क्रेडिट्स रिडीम करके. सो हाउ कैन यू अर्न दीज क्रेडिट्स और अर्न दीज कॉइन्स? सो फॉर दैट यू नीड टू अटेंड एनी ऑफ द क्लासेस फॉर मोर देन 15 minutes लाइव. ओके, तो एवरी डे लाइव या रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप देख सकते हो. 15 मिनट से ज़्यादा जब आप स्पेशल क्लासेस अटेंड करते हो तो आपको ये कॉइन्स मिलते हैं. एंड एवरी डे एट 12:30 PM आई टेक द क्लासेस, बट एज ऑफ नाउ आजकल मैं अभी 6:30 पे क्लासेस ले रही हूँ. 12:30 पे भी रेगुलर क्लासेस होती हैं. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन विद नेशनलिज्म इन इंडिया 5 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग के टॉपिक से ही कवर करते हुए चलेंगे, एंड विल सी कि बिल्कुल फर्स्ट वाला जो आपका टॉपिक है, जब गांधी जी रिटर्न आ जाते हैं, देन सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड विजुअलाइजिंग द नेशन. ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं, सबसे जितने भी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन है सब डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स क्रैक इट. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया? Explain with examples. Okay, so this is one question which has been asked in many of your previous year papers. So first world war basically took place from 1914 to 1918. ठीक है, 1914 से 1918 तक ये वर्ल्ड वॉर होता है. वैसे तो ये वर्ल्ड वॉर जो है वो यूरोप में हो रहा था, बट इसका बहुत ही खासा असर जो देखने को मिलता है वो इंडिया में भी देखने को मिलता है. ओके, वाई? बिकॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया. The 3 examples, or you can say, you can quote 4 or 5 examples, whatever you feel comfortable are here. The defense expenditure was financed by the war loans, the increased taxes and raising custom duties, and introducing the income tax. Okay, so हमारे यहाँ पे ब्रिटेन जो है बच्चों, तुमको पता है ब्रिटेन की इंडिया जो है वो कॉलोनी थी, एंड ब्रिटेन वाज आल्सो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द वर्ल्ड वॉर 1. तो ब्रिटेन क्या कर रहा था? लड़ाई करने के लिए चाहिए होते हैं पैसे. ठीक है, तो ये पैसे जो है ब्रिटेन वो कहाँ से अरेंज कर रहा था? दे वर अरेंजिंग दिस मनी
from India. Yes, you will be surprised to know that. Okay, so they were actually doing their dispense expenditure by increasing taxes in India. ओके इंडिया में टैक्सेस इंक्रीज करके और हमारे यहाँ पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा करके वो क्या कर रहे थे, देवर बेसिकली मैनेजिंग देयर डिफेंस एक्सपेंडिचर. Prices of commodities also increased, like all the prices of basic commodities, essential goods, almost doubled. ठीक है ना, जो बेसिक आपकी रोज़ की रोज़मर्रे की जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गई. जैसे बच्चों अभी पेट्रोल जो है वो 84 रुपीज़ पर लीटर है. ठीक है ना, अगर कल को पेट्रोल जो है वो 160 रुपीज़ पर लीटर हो जाए तो then you know it is going to create a problem for the common people. So this is what happened. Prices जो हैं वो almost double हो गई. So there was a lot of unrest among the people. For the continuous supply of soldiers, the villages are called upon for recruitment and was done forcefully. तो फौज में ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती किया जा रहा था, स्पेशली फार्मर्स को. फार्मर्स की एक सिपाही आर्मी बनाई जाती थी. सिपाही को ये लोग सिपाही नहीं प्रोनाउंस कर पाते थे अंग्रेज़, तो दे यूज्ड टू कॉल इट सिपाही आर्मी. And why farmers were basically chosen? Because farmers do a lot of physical work. That is why they do have a lot of strength. Okay, they are physically fit. That is why farmers को बुलाया जाता था और ज़बरदस्ती फौज में डाल दिया जाता था. There was a period of crop failure in many parts of the country which caused acute food shortages. Okay, and other than that all these situations were there which was unfavorable for Indians. उस पर क्या होता है बच्चों, क्रॉप फेलियर हो जाता है. ठीक है, बारिश नहीं होती है, ड्रॉट आ जाता है और फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है. पीपल जो है, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दिस, एंड लाइक इट इज़ सेड 12 to 13 मिलियन पीपल जो हैं वो मर गए थे अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1921. ओके, and all these situations created a lot of unrest among the people and it gave rise to anti-colonial sentiments. तो आपको भी यही सारी चीज़ें लिखनी है. डिफेंस एक्सपेंडिचर, देन प्राइजेस डबल्ड, देन फोर्स्ड रिक्रूटमेंट एंड क्रॉप फेलियर, एंड फाइनली हाउ द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल गॉट चेंज्ड. ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है इस पर्टिकुलर आंसर में. Explain the idea of satyagraha according to Gandhi ji. Now this is also very important. मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं आपको सत्याग्रह होता क्या है वो समझा देती हूँ, देन आई विल टीच यू हाउ टू राइट द आंसर. ओके, सो सी सत्याग्रह जो है ना वो एक्चुअली 2 वर्ड से बना हुआ है. तुम लोग हिंदी में करते होगे ना संधि विच्छेद, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो तुमको मिलेगा सत्य प्लस आग्रह. ठीक है, सत्य का तो मतलब होता है ट्रूथ और आग्रह का मतलब होता है बच्चों रिक्वेस्ट करना. ठीक है, तो गांधी जी ने क्या बोला कि जो तुम्हारा ऑपरेसर है, जो तुम पे अत्याचार कर रहा है, उससे तुमको फिजिकली लड़ाई नहीं करनी है, उसको थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारना है. ठीक है, हमें क्या करना है, उसको रिक्वेस्ट करना है. क्या रिक्वेस्ट करना है? टू सी द ट्रूथ, कि तुम जो कर रहे हो वो तुम गलत कर रहे हो, प्लीज़ तुम सच देखो. ओके, समथिंग लाइक दैट. Now, the idea of satyagraha, according to Gandhi ji, was a novel method of mass agitation which emphasizes the power of the truth and need to search for the truth. ठीक है, तो सत्याग्रह का मेन एम्फेसिस किस पे था कि सच जो है वो कितना ताकतवर है. ठीक है, और सच को ढूंढना है और सामने लेकर आना है. महात्मा गांधी said that if you are fighting for the truth against injustice, then there is no need to use the physical force to defeat the oppressor. If your cause is true, if you're fighting for the truth and the struggle is against injustice, अन्याय के खिलाफ तुम लड़ाई कर रहे हो, तो तुमको बंदूक, गोली, लाठी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तुम चुपचाप से शांति से भी ऑपरेसर को क्या कर सकते हो, हरा सकते हो. सच नॉवल थॉट, राइट, कि आपको वायलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है. दिस कैन बी पॉसिबल विदाउट बीइंग एग्रेसिव. आपको एग्रेसिव भी नहीं होना है, बिकॉज तुम जो लड़ाई कर रहे हो वो तो तुम सच के लिए लड़ाई कर रहे हो.
और सच तो हमेशा सामने आ ही जाता है, तो उसको ज़बरदस्ती दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप दिख जाएगा. द ऑपरेसर्स कैन बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ विद द यूज़ ऑफ नॉन वायलेंस. ठीक है, हम अहिंसा के थ्रू क्या करेंगे, ऑपरेसर को सच दिखाएंगे, कि उसको हम रियलाइज़ करवाएंगे कि जो हम बोल रहे हैं हम सही बोल रहे हैं और तुम गलत हो. ओके. Mahatma Gandhi had a hard belief that dharma of non-violence will help in uniting the people of the country. So Gandhi ji believed that non-violence is supreme dharma. हमारी संस्कृत में एक कहावत होता है ना, अहिंसा परमो धर्म. तो गांधी जी वॉज अ स्टॉन्च बिलीवर ऑफ दिस, कि हाँ जो धर्म होता है, अहिंसा जो होता है वो सबसे बड़ा धर्म होता है, और इसके थ्रू हम लोग कोई सी भी लड़ाई जो है वो जीत सकते हैं. सो सच अ थॉटफुल आइडिया, राइट. तो ये गांधी जी ने दिया था सत्याग्रह का आइडिया. अ सत्याग्रही विन्स बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स. ओके, सो अ सत्याग्रही विन्स द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस. अहिंसा के थ्रू हम लोग जीत सकते हैं पूरी लड़ाई. बेसिकली बच्चों, गांधी जी जो है ना वो कहते थे कि सत्याग्रह जो है वो एक एक्टिव रेजिस्टेंस है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड आप क्या देखते हो, जहाँ पे इन्होंने सत्याग्रह सबसे पहले स्टार्ट किया था दैट वाज साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका की मीडिया क्या बोलती थी, दैट इट इज़ अ पैसिव रेजिस्टेंस. कोई भी चीज़ पैसिव कब होती है, जब डूअर जो है वो लेस एक्शन कर रहा होता है, ठीक है, या फिर एक्शन नहीं कर रहा होता है. ठीक है. तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका वॉज ऑल्सो कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, वहाँ की मीडिया बोलती थी कि सत्याग्रह जो है वो पैसिव रेजिस्टेंस है. मतलब यहाँ पर डूअर तो कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो चुपचाप बैठा हुआ है अनशन पे, ठीक है, स्ट्राइक पे बैठा हुआ है. बट गांधी जी ने कहा तुमको लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं स्ट्राइक पे बैठ करके, बट एक्चुअली स्ट्राइक करना भी एक इंटेंस एक्टिविटी है. ठीक है, हम वायलेंस नहीं कर रहे हैं, दैट डज नॉट मीन दैट इट इज़ नॉट एन एक्टिविटी. वी आर एक्टिवली डूइंग सत्याग्रह. ओके, ये एक्टिव रेजिस्टेंस ही है, बस ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो पीसफुली किया जा रहा है. ओके, एंड वायलेंस के थ्रू नहीं किया जा रहा है. वायलेंस के थ्रू अगर रेजिस्टेंस तुम करते हो तो उसको एक्टिव रेजिस्टेंस, आप उसको एक्टिव रेजिस्टेंस मानते हो, बट ऐसा नहीं है. एक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो विदाउट वायलेंस भी किया जा सकता है, एंड ही प्रूव्ड इट in India also. Okay, so in the year 1917 it should be kids. ठीक है, ये पुरानी बुक में 1916 दिया था, नई बुक में 1917 है. In the year 1917 चंपारण सत्याग्रह in Bihar was organized to inspire the peasants to fight against the oppressive domination of plantation system. So चंपारण is a small place जहाँ पर इंडिगो प्लांटेशन किया जाता था, और इंडिगो प्लांटेशन से जो ज़मीन है वो इनफर्टाइल हो जाती थी. तो यहाँ पर सबसे पहले गांधी जी ने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत इंडिया में यहीं से की, और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह जो है वो ऑर्गेनाइज किया. सक्सेसफुल सत्याग्रह था. इन 1917 खेड़ा सत्याग्रह वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन गुजरात. ड्यू टू क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक द पेजेंट्स वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू, सो दे वर डिमांडिंग फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन टू बी रिलैक्स्ड. ठीक है, तो खेड़ा के अंदर क्या था, जो किसान थे वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, वो टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे. क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्रॉप फेलियर हो गया था. जब क्रॉप उगाओगे नहीं तो बेचोगे नहीं, बेचोगे नहीं तो इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो तुम इनकम टैक्स कैसे पे करोगे, है ना. तो यही बात गांधी जी ने वहाँ पे रखी खेड़ा में. खेड़ा इज इन गुजरात, मैप में भी आता है मार्क करने. एंड क्या हुआ नतीजा, भाई ये सत्याग्रह भी बहुत सक्सेसफुल रहा. In the year 1918, a satyagraha was organized for cotton mill workers in Ahmedabad, and that was for the reduction of wages, that the owners were reducing the wages and it was against the reduction of the wages. ठीक है, and this also proved to be successful. So Satyagrahi could win the battle without non-violence. In all these places, non-violence was the only weapon through which we were fighting. So actually we were not fighting with arms, okay? We were fighting with non-violence, okay? Peacefully हम लोग fight कर रहे थे, और ये fight successful भी रही. Write a short note on the Jallianwala Bagh massacre. Another important question, kids. बहुत बार एग्जाम में आता है.
So on 13th April 1919, a large crowd had gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh, some to protest against the British government's repressive measures, other to attend the Baisakhi fair. तो ये डेट कैसे याद रखोगे? अभी 13 अप्रैल 2019 को मैंने ना इंडियन एक्सप्रेस जब उठाया था पढ़ने के लिए, मेरे यहाँ पे 3-4 पेपर आते हैं न्यूज़पेपर, तो मैंने वो तीनों चारों न्यूज़पेपर में देखा कि जालियांवाला बाग के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था. वाई? बिकॉज ऑन 13 अप्रैल 2019 जालियांवाला बाग completed 100 years. ओके, so this is how you need to remember. 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग मैसेकर जो है वो हुआ था. और जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठे क्यों हुए थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए और बैसाखी फेयर सेलिब्रेट करने के लिए. These people were unaware of the martial law which was there in the city and which enacted on 10th April. 10th April को जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगाया था. अकॉर्डिंग टू मार्शल लॉ, more than 4 people cannot gather at one place. Okay. So General Dyer, the commander, blocked the exit points from the Bagh and opened fire upon the innocent citizens. जनरल डायर आया बंदूकों के साथ सिपाहियों को लेकर के, उसने एग्जिट गेट्स बंद कर दिए और लोगों पर गोलियां बरसाने लग गया. Hundreds of innocent people, including women and children, were killed and wounded due to the indiscriminate firing of British soldiers. So many people, women, men, children lost their life and many of them got injured. This incident angered the masses of India, ultimately led to nationwide outrage. और इसके बाद क्या हुआ बच्चों? उनके एक्शन पे हमारा रिएक्शन हुआ और बहुत सारे लोग गुस्से में नेशन वाइड स्ट्रगल करने लग गए. उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दिखाना शुरू कर दिया, अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ. सो बहुत सारी रैलियाँ निकाली गई एंड बॉन फायर्स हुए, बॉयकॉट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को. जालियांवाला बाग इंसिडेंट वॉज द मोस्ट ब्रूटल इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. Dyer's intention was to produce a moral effect and terrorize satyagrahis. So after later on, General Dyer was even went under trial. British government ने इनका ट्रायल भी लिया और पूछा कि तुमने इतना brutal act कैसे कर दिया. So he confessed in that particular trial that he wanted to create a terror effect among the minds of the people. Okay. तो बहुत ही ख़तरनाक इंसिडेंट था और एग्ज़ाम में हमेशा आता है. आपको अच्छे से ये प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है, लिख के प्रैक्टिस करना है. ओके किड्स, नाउ दिस इज़ द न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन विच हैज़ स्टार्टेड कमिंग इन योर एग्जाम. आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन था विच वॉज सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, है ना. किसने किसने देखा है सैम्पल क्वेश्चन पेपर? तो देखो, ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आपको वो आंसर करना होता है. अभी यहाँ पे तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव था, ठीक है ना. ऑन 6 जनवरी 1921 द पुलिस इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस फायर्ड एट प्रेजेंट नियर द रायबरेली. जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू गो टू द प्लेस ऑफ फायरिंग बट वाज स्टॉप्ड बाय द पुलिस. एजिटेटेड एंड एंग्री, नेहरू एड्रेस्ड द पेजेंट्स हु गैदर्ड अराउंड हिम. देखो बच्चों, ऐसा जो क्वेश्चन आता है ना, आपको क्या करना होता है, पहले क्वेश्चन रीड करना होता है, फिर ट्राई टू रीड द लाइक आपने शुरू में थोड़ा सा स्किम कर लिया कि अच्छा बुक में कहाँ से दिया हुआ है. अभी मैंने इसको जैसे थोड़ा सा स्किम किया ना, मुझे पता चल गया कि ये तो किसी बॉक्स से दिया हुआ है. चैप्टर में एक बॉक्स है जहाँ पे अवध पेजेंट्स के बारे में दिया हुआ है, बाबा रामचंद्र, वहाँ पे ये बॉक्स था, वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. ये मुझे आइडिया लग गया. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सी द क्वेश्चन एंड देन आई विल रीड द सोर्स. Name the movement during which the police in the United Province fired the peasants. So the year is somewhere 1921. So we were talking about इस टाइम पे क्या हुआ था इंडिया में, NCM movement था, ठीक है. Name the leader about which Jawaharlal Nehru is talking about. Now you need to go through the paragraph. Agitated and angry, Nehru addressed the peasants who gathered around him. This is how later described the meeting. They behaved as brave men and calm and unruffled in the face of danger. I do not know how they felt, but I know what my feelings were. For a moment, जो important लग रहा है उसको underline करो. My blood was up. Non-violence was almost forgotten for a moment. The thought of the great leader who by God's goodness has been sent to lead us in victory come to me. And I saw the Kisans seated, standing and near me.
less excited, more peaceful than I was. Okay, so here he's talking about Mahatma Gandhi. Okay, so MKG, Mohandas Karamchand Gandhi. Name the weapons used by leaders during the national movement for independence. So the moment of the weakness passed, I spoke them all in humanity of non-violence. I needed the lesson more than heeded me and peacefully dispersed. Okay, then they heeded me. Okay, तो यहाँ पर क्या वेपन यूज कर रहे हैं हम लोग? द वेपन ऑफ नॉन वायलेंस. व्हाट वाज नेहरूज फीलिंग एंड हाउ डिड ही चेंज? So you can see that his blood was up, his blood was boiling, right, by seeing the incident. Actually रायबरेली में ये जो हुआ था ना इंसिडेंट, जब पेजेंट्स के ऊपर गोलियां बरसाई गई थी, इसको सेकेंड जालियांवाला बाग इंसिडेंट भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वैसे ही बहुत ही ब्रूटली लोगों पे गोलियां चला दी गई थी, कॉमन पीपल पे. ठीक है, तो नेहरू जो हैं वो बहुत ही एंग्री हो गए थे, लेकिन लेटर ऑन ही थॉट अबाउट महात्मा गांधी एंड हिज टीचिंग्स, देन ही changed his feeling. What is the source of above passage? So this passage has been taken from Jawaharlal Nehru, a biography, volume 1. This is the name of the book and the author is Sarvapalli Gopal. तो यहाँ पर तो दे रखा है, बट कई बार ये चीज़ नहीं दी हुई होती है और आपको आंसर बताना होता है. ठीक है, तो मेक श्योर कि जो भी बॉक्सेस हैं उसके नीचे में जो सोर्स है ना, उसको आप ज़रूर देख लो कौन से बुक से लिया गया है. तो आंसर यही है, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत, महात्मा गांधी, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस. ही वॉज हैंग्री बट थॉट ऑफ महात्मा गांधी, कोटेड इन सर्वपल्ली गोपाल जवाहरलाल नेहरू बुक. ओके, अगेन द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन. रीड द पैसेज एंड राइट डाउन द आंसर्स ऑफ गिवन क्वेश्चन. So it is said of passive resistance that it is the weapon of the weak. So now again this is also from one of the source boxes. ठीक है ना, ये कहाँ पे दिया हुआ है भाई? आपके बुक के अंदर जो सबसे पहला बॉक्स है इस चैप्टर में वही है, गांधी जी ऑन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. एक ऐसा बॉक्स दिया होगा, है ना, रॉलेट एक्ट वाले पेज पे जस्ट ऊपर. तो क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द ग्रेट मैन हु स्पोक दीज वर्ड्स? नेम 2 मेथड्स यूज्ड बाय हिम ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. What is satyagraha? For what purpose the satyagraha was used? What is the difference between physical force and soul force? Okay, so it is said of passive resistance that it is the weapon of the weak, but the power which is subject to of this article can be used only by the strong. This power is not passive resistance. Indeed, it calls for intense activity. The movement in South Africa was not passive but active. Satyagraha is not a physical force. A satyagrahi does not inflict pain on adversary. He does not seek his destruction in use of the satyagraha. There is no ill will whatever. So who is the great man who spoke these words? This is Mohandas Karamchand Gandhi ji. Name 2 methods used by him during the struggle of independence, truth and non-violence. You can say satyagraha. What is satyagraha? It is a method of mass agitation in which violence is not used. For what purpose satyagraha was used by the person named by you in South Africa? So here in South Africa, Mahatma Gandhi was basically using satyagraha against racial discrimination system. इसको हम लोग बोलते हैं अपार्थीड भी बोलते हैं. What is the difference between physical force and soul force? Okay बच्चों, देख लो अभी. Against injustice apartheid system in South Africa, satyagraha is a soul force, whereas arms force is a physical force. Physical force depends upon the ill will. While the use of satyagraha, there is no ill will. हम किसी का बुरा भला नहीं चाहते. When we are using satyagraha, हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं. हम तो बस ये चाहते हैं कि सामने वाला क्या हो, सामने वाले को सच जो है वो समझ आ जाए. ओके, हम ये नहीं चाहते हैं कि उसका कुछ नुकसान हो जाए. लेकिन जब फिजिकल फोर्स को इंसान यूज़ करता है ना, तो डेफिनेटली चाहता है सामने वाले को हर्ट करना. ठीक है, तो गांधी जी ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे. सच अ ब्यूटिफुल आंसर, राइट? Such a beautiful thought. What was the impact of infamous Jallianwala Bagh incident over the society and British government? Okay. तो जो जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था ना बच्चों, उसका क्या इफ़ेक्ट रहा हमारी सोसाइटी पे, इंडियंस पे एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, ये आपको लिखना है. ठीक है, तो जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और उसमें बहुत ब्रूटल एक्ट था ये. अंधाधुन जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी जालियांवाला बाग में. इनोसेंट लोग आए हुए थे, बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे. तो जब इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ तो लोगों के अंदर डेफिनेटली गुस्सा तो आएगा ना. वैसे गांधी जी हमें पाठ पढ़ा रहे थे नॉन वायलेंस का, लेकिन
जब आपके खुद के अपने लोगों पर गोलियां चलेंगी तो डेफिनेटली लोगों को गुस्सा तो आएगा. ओके, सो हाउ पीपल रिएक्टेड, इसके बारे में ये लिखना है. As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to the streets in many North Indian towns. So crowds came to the streets. ठीक है, लोग जो हैं वो सड़क पे निकल गए. There were strikes, clashes with the police, एंड अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग. ओके, तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो भी थे, ब्रिटिश पावर के जो सिंबल हुआ करते थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ही हुआ करते थे, वहाँ पर अटैक करने लग गए लोग. वहाँ पर कुछ गोलियाँ बारियाँ या वायलेंस करने लग गए. पुलिस के साथ क्लैशेस होने लग गई. देयर वर स्ट्राइक्स ऑल्सो. द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल. येस, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सत्याग्रही थे उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रही थी गवर्नमेंट. सत्याग्रही को फोर्स किया गया, उन लोगों को फोर्स किया गया टू रब देयर नोजेस ऑन ग्राउंड एंड क्रॉल ऑन स्ट्रीट्स एंड डू सल्यूट टू ऑल द साहिब्स. सो क्या कर रहे थे वो, इन लोगों को मॉरली डाउन करने की कोशिश करने लग गई ब्रिटिश गवर्नमेंट. पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस अराउंड गुर्जनवाला इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, वर बॉम्ब्ड. तो लोगों को छड़ी से, विप से, हंटर से मारा जाने लगा, लाठीचार्ज हुआ. एंड कुछ जो गांव थे गुर्जनवाला, उनको बॉम्ब कर दिया गया. सो दे कम्प्लीटली यूज्ड वायलेंट मेथड्स टू स्टॉप द पीपल फ्रॉम डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. On the other hand, in India, among Indians, you will observe that violently also they reacted at some places, and at some places they did peaceful strikes. Okay, so there was a lot of agitation again against the Britishers. Explain the issue behind the Khilafat movement. Okay, अभी जैसे जालियांवाला बाग इंसिडेंट होता है ना, उसके जस्ट पहले बच्चों, क्योंकि जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ है हमारा 13 अप्रैल 1919 को. ओके, एंड मार्च 1919 को आप क्या देखते हो कि जो हमारे इंडिया के मुस्लिम्स हैं उन लोगों ने एक कमिटी बनाई है विच इज़ कॉल्ड खिलाफत कमिटी. ठीक है, please note the spelling of committees. It has got COMMITTEE. okay, 3 times double alphabet. okay, तो खिलाफत कमेटी जो है वो मार्च 1919 में बनी थी. अब क्यों बनी थी ये मार्च 1919 में? देखो, वर्ल्ड वॉर 1 जो है ना वो भी ताज़ा ही ख़त्म हुआ था. 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था, 1918 में ख़त्म हुआ था. ओके, एंड वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो 2 ग्रुप्स लड़ाई कर रहे थे, दोज वर सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स. ओके, अभी सेंट्रल पावर के अंदर बच्चों वॉज ऑस्ट्रिया, ओटोमन एम्पायर, प्रूशिया. सो दीज वर द कंट्रीज हु पार्टिसिपेटेड. ओके, एंड अलाइड पावर्स में थे ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस. ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो ब्रिटेन और जो ओटोमन एम्पायर है दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं. ओटोमन एम्पायर वाज मोस्टली एन इस्लामिक एम्पायर. ओके, यहाँ पे मोस्टली मुस्लिम्स लोग थे. वर्ल्ड वॉर 1 में क्या होता है, ये सेंट्रल पावर जो है ये हार जाते हैं. अब अलाइड लोग जो हैं वो ओटोमन एम्पायर के ऊपर बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी लगा रहे थे. इनका जो पूरा का पूरा एम्पायर था वो इनसे छीन लिया गया था और सिर्फ इनको एक छोटी सी जगह इस्तांबुल जो है वो दे दी गई थी. और जो ओटोमन एम्पायर का हेड था, खलीफा जिसको हम लोग कहते थे या कैलिफ कहते थे, उनके पावर्स को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया जा रहा था. इससे हमारे इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था ब्रिटिशर्स को लेकर के कि भाई हम लोगों ने तो पहले काफ़ी टाइम तक तुम्हारा साथ दिया है. मुस्लिम लीग भी 1906 में हमने फॉर्म किया था अंडर योर गाइडेंस. आप लोगों से पूछ के हमने हमेशा आप लोगों को का साथ दिया. लेकिन अभी जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है तो तुम हमारा जो रिलीजियस हेड है कैलिफ, तुम उसके पावर्स क्यों रिड्यूस कर रहे हो? सो दे वर रियली एंग्री विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, and that is why these 2 young brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali, okay, they formed a committee called Khilafat Committee, and they wanted to launch a movement against the Britishers in India as well. Okay, so the First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey,
ओटोमन टर्की जो है वो हार गया था। There were rumors that harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, the spiritual head of the Islamic world. लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो जर्मनी के साथ बहुत ही खराब मतलब ट्रीटमेंट किया गया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, तो लोगों को लग रहा था सेम चीज़ जो है वो ओटोमन एम्पायर के साथ भी होगी। टू डिफेंड द रॉलेट एक्ट, महात्मा गांधी फेल्ट टू टेक द खिलाफत इशू. To bring Hindus and Muslim closer, he failed to take the खिलाफत issue. Okay, so what गांधी जी thought कि देखो अभी ताज़ा हमारा जालियांवाला बाग मैसेकेयर भी हुआ है, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, लोग भी कुछ ना कुछ तो इसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स के सामने कुछ तो करना ही है ना, ऐसे चुपचाप तो नहीं बैठ सकते। गांधी जी को ये पता था कि हमें कुछ तो भी अपने तरीके से प्रोटेस्ट लॉन्च करना है। बट नाउ ही थॉट कि देखो मुस्लिम लोग भी तो प्रोटेस्ट करने जा ही रहे हैं, तो क्यों ना हिंदू और मुस्लिम साथ में मिलकर के एक यूनाइटेड स्ट्रगल लॉन्च करें। ओके, सो मुस्लिम लीडर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली began discussing with Gandhi ji the possibilities of united mass action on the issue. Later at Calcutta session in 1920, कांग्रेस का एक सेशन हुआ कैलकाटा में, ये मैप में भी आता है बच्चों, where Gandhi ji convinced the leaders in Congress to start a non-cooperation movement in support of Khilafat, and later on the whole movement was called non-cooperation खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, और इसमें 2 गोल्स डिसाइड किए गए। वन वॉज खिलाफत इशू कि ओटोमन एम्पायर का जो हेड है उसकी पावर को ना रिड्यूस किया जाए, एंड द सेकेंड वन वॉज स्वराज कि हमारे देश में हमें क्या चाहिए, अपना सेल्फ रूल चाहिए, हमारी खुद की गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट चलाने वाले जो लोग हों वो हमारे खुद के लोग हों, ना कि ब्रिटिशर्स। ओके, How had non-cooperation movement spread in cities? Explain. Okay. तो बच्चों non-cooperation movement हर जगह पे हुआ, cities में हुआ, गांव में हुआ, मतलब कंट्री साइड में हुआ, ट्राइबल एरियाज़ में हुआ, प्लांटेशंस में हुआ। तो इसमें से हमें बताना है cities में ये non-cooperation movement कैसा रहा। In January 1921, the non-cooperation Khilafat movement was started, in which different social groups participated with different aspirations from Swaraj. Okay, तो non-cooperation movement start हुआ है, खिलाफत movement, मैंने बोला आपका इसका नाम चेंज कर दिया गया, जिसमें हर social group ने participate किया, सबका मोटिव अलग अलग था, सबके विशेज़ अलग अलग थे। एस्पिरेशंस का मतलब होता है विशेज़, सबका गोल अलग अलग था। The movement was started with the middle class people of towns and cities. So in towns and cities, who participated? Middle class people. Okay, and also students left their school and colleges, teachers and headmasters resigned, and the lawyers gave up their practices. Teachers, headmasters ने resign कर दिया स्कूल से, lawyers ने कोर्ट में जाने से मना कर दिया। तो बेसिकली बॉयकॉट कर रहे हैं हम लोग किसको, सिविल सर्विसेज को। The council elections were also boycotted except in Madras. The Justice Party, which was party of non-Brahmins in Madras, felt that power can be acquired only through council elections. ठीक है, तो काउंसिल इलेक्शन भी जो कि नागपुर के 1920 वाले सेशन में डिसाइड किया गया था, दिसंबर 1920 सेशन में, कि हम लोग सब कुछ अपोज करेंगे। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमें इलेक्शन भी अपोज करना था, तो हर जगह पे इलेक्शन भी अपोज हुआ एक्सेप्ट इन मद्रास। ठीक है, मद्रास में सिर्फ ये नहीं हुआ। वाई किड्स? बिकॉज मद्रास के अंदर आप क्या देखते हो ना, जस्टिस पार्टी थी जो जिसमें मोस्टली नॉन ब्राह्मण लोग थे, एंड उनको लग रहा था कि अगर हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने हैं तो गवर्नमेंट में ज़रूर हमें एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए। दैट इज़ वाई दे पार्टिसिपेटेड, दैट इज़ द ओनली पार्टी विच डिड नॉट बॉयकॉट द इलेक्शन। सो दिस ऑल्सो कम्स इन योर 1 मार्क क्वेश्चन। द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज ह्यूज। फॉरेन गुड्स बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप जो है वो पिकेट की गई, फॉरेन क्लोथ्स जलाए गए, फॉरेन इससे इम्पोर्ट जो है फॉरेन क्लोथ का वो काफ़ी नीचे आ गया, और वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट हाफ हो गई। मतलब पहले 121 करोड़ रुपए के अगर कपड़े अंग्रेज़ बेच देते थे इंडिया में, तो इट ड्रॉप डाउन टू समवेयर 56 और 57 करोड़। ओके, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लोड डाउन इन टाउन्स, लेकिन लेटर ऑन आप क्या देखोगे, धीरे धीरे टाउन्स में इसकी इंटेंसिटी जो है ना वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी लोग फॉरेन क्लॉथ्स नहीं खरीद रहे हैं,
तो क्या खरीद रहे थे? पीपल वो बाइंग खादी, एंड खादी वॉज मोस्टली मेड बाई हैंड्स, वो हैंड स्पन होता था, तो हाथ से बनाई गई चीज़ें हमेशा कॉस्टली होती हैं, राइट? तो ये जो हैंड स्पन खादी था ना, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड इट. तो धीरे धीरे दे स्टार्टेड अगेन बाइंग द फॉरेन क्लोथ्स. There was need for Indian institution for teachers and students and lawyers, but these were very slow to come up. Now, if the student, teacher, or lawyers are not going to their school, colleges, or the court, then they would need some other institution ना जहाँ पे वो जा करके अपना काम करें. और इंडियन इंस्टीट्यूशन तो था नहीं हमारे पास, ठीक है. सो व्हाट हैपेंड, दे slowly started trickling down to the schools and colleges, and this is how the whole movement lost its momentum in towns and cities. Okay, so how had non-cooperation spread? Initially, the movement started the way it was planned, but later on it lost its momentum. Okay, आ रहा है समझ में सबको, या फिर ऐसे ही सिर्फ पढ़े जा रहे हो? हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन स्प्रेड टू द कंट्री साइड? कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? विलेजेस. विलेजेस में ये मूवमेंट जो है वो कैसा रहा, ये बताना है, ठीक है. ड्यू टू द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, agricultural prices began to fall. Demands for agricultural goods fell and export declined. ओके किड्स, यहाँ पर ना थोड़ा सा आपका आंसर गड़बड़ ही दे रखा है. Let us not see this answer. Okay, how did the non-cooperation spread in countryside? So see, in countryside, basically we have seen the case study of Awadh. Okay, there what happened, there the whole non-cooperation movement was led by Baba Ramchandra. ठीक है, बाबा रामचंद्र जो हैं वो ये पूरा का पूरा मूवमेंट जो है वो कर रहे थे. he was doing the whole of the movement there. I'll tell you इसका आंसर क्या होगा. how did the non cooperation spread to the countryside? So in the countryside, in the village, the procession was being led by Baba Ramchandra, who was an endangered labor earlier in Fiji Island. ठीक है, फीजी कहाँ पे है भाई? ऑस्ट्रेलिया के बगल में है. बाबा रामचंद्र. ओके, in Awadh he was leading the whole procession. And here, who all participated in the movement? So here mostly the peasants participated, poor peasants. Okay, now when they are participating, then there must be some demands, right? Why were they participating? Actually, the idea of Swaraj was quite different over there. Okay, here the peasants' struggles was against the talukdars and landlords. Okay, and what were their demand? Their demands were that they wanted a reduction in revenue, कि ये जो हम लोग अभी टैक्सेस पे कर रहे हैं उसका रिडक्शन हो जाए. ओके, दे वांटेड बेगार टू बी अबॉलिश्ड, मतलब ये लोग फ्री में ही काम कर रहे होते थे दूसरों की ज़मीन पर, और उनको कोई सैलरी नहीं मिलती थी इसके लिए, उनको मिल जाता था थोड़ा बहुत अनाज वगैरह. तो ये जो बेगार है उसको अबॉलिश कर दिया जाए. एंड दे ऑल्सो वांटेड द सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑल दीज तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स. ओके, ठीक है. सो दे इवन स्टार्टेड नाई धोबी बंद मूवमेंट, मतलब ये जो लैंडलॉर्ड और तालुकदार हैं उनको नाई और धोबी की भी सर्विसेज जो हैं वो नहीं देंगे. अदर देन दैट व्हाट हैपेंड, दे ऑल्सो फॉर्म्ड अवध किसान सभा. ओके, अवध किसान सभा अंडर द लीडरशिप ऑफ
जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में एंड बाबा रामचंद्र जी के नेतृत्व में अवध किसान सभा बनाया गया। और इसमें क्या किया बच्चों, इसमें सारे जितने भी पेजेंट्स थे उनके ग्रीवेंसेस, उनकी जो भी प्रॉब्लम थी उसको कलेक्ट किया गया एंड दिस वाज सपोज टू बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू कांग्रेस। ओके, तो कांग्रेस के थ्रू क्या था, ये सारे ग्रीवेंसेस जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखे जाने वाले थे। So yes, the movement was started with a lot of enthusiasm and many of the problems got solved also. But later on, what you will see, these peasants have started using the violence and they have started looting the houses of the talukdars and landlords. And since violence was increasing and Gandhiji was always against violence. So this movement slowly slowed down in the countryside because INC could not encourage this movement or could not support this movement anymore because of the violence. ठीक है, तो ऐसा हुआ जब उन्होंने violently act करना शुरू किया तो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट करने से मना कर दिया इन peasants को। ओके, सो आई एम सो सॉरी दैट द आंसर वाज रॉन्ग, जो रिटन था वो गलत था। How the plantation workers of Assam understand Mahatma Gandhi ji and the notion of Swaraj. Okay, तो plantation workers जो थे ना मोस्टली असम में, वो लोग महात्मा गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किस तरीके से लेते हैं, उनका स्वराज का जो आइडिया था वो क्या था, ये सारी चीज़ें लिखनी है बच्चों। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि असम में क्या होती थी, कौन सी प्लांटेशन होती थी टी प्लांटेशन। ठीक है, अब टी प्लांटेशन जो है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। ठीक है, इट्स अ लेबर इंटेंसिव फील्ड ऑफ वर्क। लेबर इंटेंसिव क्यों, तुम लोगों ने ना कभी चाय वाय का ऐड देखा होगा, उसमें क्या होता है, वो एक लेडी होती है, उसके सर पे ऐसे कुछ पट्टी लगी होती है, पीछे टोकरी लगी होती है, एक एक पत्ते को वो लोग तोड़ते हैं, टोकरी में डालते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में जो चाय होती है ना उसकी क्वालिटी उसके पत्तों की क्वालिटी से डिसाइड की जाती है। जैसे सपोज़ करो टी प्लांट में जो बिल्कुल ऊपर वाले जो लीव्स होते हैं ना, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट वाले जो लीव्स होते हैं, उससे बिल्कुल अच्छी वाली जो चाय होती है ना वो बनती है। नीचे वाले जो लीव्स होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, तो इसलिए उससे सेकेंड क्वालिटी वाली चाय बनती है। और सबसे नीचे वाले जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही पुराने पत्ते होते हैं और उससे बिल्कुल थर्ड लेवल वाली जो चाय होती है ना वो बनती है। तो बहुत ज़्यादा ये जो काम है ना पत्तों को छाँटने का, ये काम जो है वो कोई मशीन नहीं कर सकती। आपको आंखों से देख करके ह्यूमंस ही लगेंगे, इंसान ही लगेंगे उन पत्तों को छाँटने के लिए। तो बहुत ज़्यादा लेबर लगता था इसमें और लेबर से बहुत ज़्यादा काम भी कराया जाता था। अब ये जो लेबर है ना, एक बार अगर प्लांटेशन में आके फंस गए तो उनको कभी जाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि एक बार अगर वो अपने घर गए ना तो कभी वापस नहीं आएंगे, उनसे इतना ज़्यादा काम कराया जाता था। ठीक है, इट्स लाइक कि मैंने तुमको बुलाया, बोला यार आज क्लास आ जाओ, ठीक है, और मैंने क्लास में तुम्हें आज पढ़ा दिया 10 घंटे, तो डेफिनेटली तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे नेक्स्ट टाइम जब मैं बुलाऊंगी तो तुम आओगे मेरी क्लास में। बताओ, अच्छे से सोच के बताओ मुझे, ठीक है, देन आई विल थिंक ऑफ टेकिंग 1 day 10 hours मैराथन। आओगे तुम लोग मेरी क्लास में फिर दोबारा? चलो कुछ बच्चे तो आ भी जाएंगे, कुछ बच्चे जो हैं वो नहीं आएंगे, है ना, बोलेंगे यार मैम बहुत ज़्यादा पढ़ाते हो आप, है ना। तो ऐसे ही ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे ना, उनसे बहुत काम करवाया जाता था और उनको कभी परमिशन नहीं दी जाती थी अपने गाँव वाँव जाने के लिए। तो वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड नोशन ऑफ स्वराज। For plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed and meant retaining a link with the village from which they had come. तो अगर उनको आज़ादी दे दी जाती कि भाई अपने हिसाब से जाओ आओ, तो फिर भी वो काम करने में इंटरेस्टेड होते, लेकिन जब जाने नहीं दिया जा रहा है तो उनको बहुत बुरा लगता था। ओके, सो दे थॉट कि यार हमें गाँव वगैरह वापस जाने को मिलेगा जब स्वराज आ जाएगा। तो under the Inland Emigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission, and in fact they were rarely given any such permission. So the British government has made one law also, Inland Emigration Act of 1859. Under this law, जब भी plantation worker को plantation छोड़ के जाना है तो British government से लेनी पड़ेगी permission, जो कि British government कभी देती नहीं थी।
So when they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities. बहुत सारे हज़ारों के नंबर्स में जो वर्कर्स हैं उन लोगों ने अथॉरिटीज़ को इग्नोर कर दिया, ठीक है, उनके बातों को इग्नोर करते हुए, डिसोबे करते हुए दे लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड टुवर्ड्स द होम, अपने घर की तरफ निकल चले. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own village. उनको लग रहा था गांधी राज आ गया है और अब तो अपने गांव में जाएंगे तो ज़मीन मिलेगी, वहीं रहेंगे, वहीं खेती करेंगे, वहीं खाएंगे. They, however, never reached their destination. लेकिन गांव जाने के लिए आपको रेलवेज़ या कुछ तो चाहिए ना, आपको जाने के लिए ट्रेन चाहिए. तो जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पे स्टीमर स्ट्राइक हो गया और वहाँ पर लोगों से सारी सामान छीन लिए गए, उनको बिल्कुल निहत्था छोड़ दिया गया, स्ट्रैंडेड छोड़ दिया गया और पुलिस ने उनको बहुत ही ब्रूटली मारा पीटा भी. ओके, तो इन प्लांटेशन वर्कर्स का जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इट बेसिकली फेल्ड, बट येस इट यूनाइटेड द पीपल. ओके, उनको ये समझ में आ गया था कि अब हम लोग यूनाइटेडली ही क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं अंग्रेज़ों से. अकेले अकेले लड़ेंगे तो लड़ ही नहीं पाएंगे कभी भी इनसे. Why Gandhiji decided to withdraw the non-cooperation movement? Now this is also one of the very important questions. बहुत बार आता है बच्चों आपके एग्जाम में. Gandhiji had declared that non-cooperation movement will be a non-violent one. So since beginning only Gandhiji has said कि जो non-cooperation movement रहेगा ना वो बिल्कुल non-violent होना चाहिए और इसमें बिल्कुल लड़ाई की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, वायलेंट तरीके से तो लड़ाई करनी ही नहीं है. ठीक है, दिस इज व्हाट ही सेड. बट वॉट हैपेंड, लोगों के अंदर गुस्सा था, कहीं ना कहीं तो वायलेंस होना था. So he decided to withdraw the non-cooperation movement due to various incidents of violence perpetrated by the masses, especially the Chauri Chaura incident in the 1922, where police clashed with the people, people clashed with the police, setting the police station on fire. So Chauri Chaura is a small place in Gorakhpur in Uttar Pradesh. वहाँ पे क्या हुआ, पहले तो पीसफुल प्रोसेसन चल रहा था, लेटर ऑन लोगों में और पुलिस में एक झड़प हो गई और लोगों ने गुस्से में आकर के पुलिस स्टेशन को आग लगा दी. ठीक है, तो ये तो बहुत ही बड़ा वायलेंस का इंसिडेंट था. Although he had stopped the national revolt single-handedly on 10th March 1922, Gandhiji was arrested and on 18 March he was imprisoned for 6 years. So मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो गया. यहाँ पे गांधी जी ने मूवमेंट जो है वो बंद कर दिया. 10 मार्च को उनको पकड़ लिया गया और 18 मार्च को उनको 6 साल की सज़ा सुना दी गई. अब ये जो है ना, ये पर्टिकुलर इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हिस्ट्री में आप पढ़ोगे ना तो गांधी जी का सबसे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट यही था. This led to the suppression of movement and was followed by arrest of other leaders. Gandhiji felt that the people were not yet ready for the mass struggle and satyagrahis need to be properly trained for the non-violent demonstration. गांधी जी को लगा कि लोगों को अभी वायलेंस का पाठ जो है ना वो भूल नहीं पा रहे हैं, है ना. तो उनको नॉन वायलेंस जो है वो अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, उनकी आदत में डालना पड़ेगा, तब जा कर के मैं कोई नया स्ट्रगल लॉन्च करूँगा. And this is how he ended whole of the non-cooperation movement because of the Chauri Chaura incident. This was the major incident. Okay, 5th Feb 1922 को हुआ था ये भी बच्चों मैप में आता है तो मैप में मार्क करना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. What were the 3 proposals regarding the non-cooperation movement as suggested by Mahatma Gandhi? Okay, तो यहाँ पर जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको लिखना है हिंद स्वराज के बारे में भी. आंसर में नहीं लिखा हुआ है बट आपको लिखना है. तो हिंद स्वराज जो है वो बुक कब लिखी थी महात्मा गांधी जी ने, जब ये अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में 1909 में लिखा था. एंड ही हैज सेड दैट ब्रिटिशर्स कुड रूल इंडिया ओनली बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस. ब्रिटिशर्स इंडिया में आए हैं 1600 और मैं बुक लिख रहा हूँ 1909 में. तो लगभग 309 साल से ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे हैं. And such kind of rule for 300 years is not possible without the cooperation. You people are cooperating. That is why they are ruling over you. Okay. So he said कि non cooperation movement में हमें cooperate नहीं करना है गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट को stand still position पे लेकर आ जाना है. ठीक है. So the movement was to be unfolded in 3 stages. 3 stages में unfold होने वाला था. फर्स्ट स्टेज में क्या करने वाले थे, सारे हमारे जो लीडर्स थे दे वर सपोज टू सरेंडर द टाइटल्स. बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना वो हमारे इंडियंस को भी अप्रिशिएट करने के लिए टाइटल्स देती थी. जैसे गांधी जी को दिया हुआ था केसरी हिंद का टाइटल. ठीक है,
ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया हुआ था नाइटहुड का टाइटल। तो ये सारे टाइटल्स लोगों ने गवर्नमेंट को लौटा दिए। ओके, देन इट ऑल्सो सेकेंड स्टेप क्या था, बॉयकॉट ऑफ द सिविल सर्विसेज। सेकेंड क्या करना है हमें, सेकेंडली सिविल सर्विसेज बॉयकॉट करनी है, मतलब अंग्रेज़ों की बनाई हुई आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, इन सब जगहों पे हमें काम करने जाना ही नहीं है। हमें ये भी यहाँ पे भी कोऑपरेशन जो है वो नहीं दिखानी है। ठीक है। एंड फाइनली अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिप्रेशन यूज़ करेगी, दबाने की कोशिश करेगी इंडियंस को, तो क्या लॉन्च करेंगे हम लोग, सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, तो CDM लॉन्च हो जाएगा। तो ये 3 स्टेजेस थे जिसमें पूरा का पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है होने वाला था, और लोगों को बताया गया था कि ये नॉन वायलेंटली ही करना है। बट आपने पहले क्वेश्चन में देखा लोगों को नॉन वायलेंस इतने अच्छे से आया नहीं था परसू करना, तो वो चौरी चौरा इंसिडेंट में वायलेंस हो जाता है, मूवमेंट विथड्रॉ कर लिया। यह है, लेट्स क्रैक इट। Explain the effects of worldwide economic depression on India towards the late 1920s. Okay, so worldwide economic depression जो है ना वो आया था 1929 के आसपास और चला था 1932। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या था, दिस वाज द आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 जो कि 1914 से 1918 तक हुआ है। ठीक है ना, वर्ल्ड वॉर में एक्चुअली बहुत सारे पैसे जो हैं वो बिग पावर्स जो हुआ करते थे यूरोप के, उनके बहुत सारे पैसे जो हैं वो वॉर में खर्च हो गए थे। ठीक है, वॉर में जब पैसे इतने ज़्यादा खर्च हो गए थे, और पैसे इन लोगों ने काफ़ी सारा लोन पे भी लिया हुआ था वॉर में लगाने के लिए। किससे लोन लिया हुआ था, USA से। ठीक है, तो देखो पैसे जो है ना वो बहुत सारे इन लोगों ने खर्च कर दिए थे, लोन भी ले रखा था। अब लोन चुकाने का टाइम आ गया था 1918 में, जब वॉर ख़त्म हुआ तो 1918 से 1928 तक 10 साल तक इन लोगों ने लोन वगैरह चुकाया। जब तुम लोन भी चुकाते हो तो डेफिनेटली आपकी जो अर्निंग है वो तो कम ही रहेगी ना, क्योंकि आप मैक्सिमम पैसा तो लोन रीपे करने में लगा रहे हो। तो अभी क्या हो रहा था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो थी या जो भी लोग कहीं पे भी काम करते थे वो लोग सैलरी रिड्यूस कर रहे थे। ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं, यूरोप की बात कर। ठीक है, बैंक्स के पास एक्चुअली में पैसे थे नहीं। USA ने लोन पहले दिया तो था इन बिग पावर्स को, लेकिन ये बिग पावर्स के पास भी पैसे नहीं थे कि वो लोग उनका लोन वापस चुका पाएँ, USA का लोन। और USA का जो बैंक है वो एकदम से क्रैश हो गया, और एक सिचुएशन आई जब बैंक के पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि बैंक ने सारे पैसे तो लोन पे दे दिए थे और लोन का रीपेमेंट कर नहीं पा रहे थे ये सारे देश। तो इस सिचुएशन को ही ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ग्रेट डिप्रेशन आया तो था यूरोप में, इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ा। बेटा देखो इंडिया जो है ना वो क्या है, वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी है, कॉलोनी थी, है नहीं, हो भी नहीं सकती है अब तो। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, और हम लोग उस टाइम पर जितना भी अनाज उगाते थे, जो भी अपना सामान प्रोड्यूस करते थे, वेदर इट इज़ क्रॉप्स और गुड्स, एवरीथिंग वॉज फॉर द वेस्टर्न मार्केट इटसेल्फ। जो वेस्टर्न मार्केट हुआ करता था या जो यूरोपियन मार्केट हुआ करता था, उन्हीं के लिए सारा अनाज उगाया करते थे हमारे देश में किसान। अभी क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, उनकी परचेजिंग पावर जो है वो बहुत कम हो चुकी है। ठीक है भाई, बिकॉज ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। सो नाउ अभी क्या है, डिमांड भी कम हो गया है। जब डिमांड कम होता है तो चीज़ों के दाम जो होते हैं वो अपने आप क्या हो जाते हैं, फॉल करने लग जाते हैं। कंसेप्ट समझ आ गया। नाउ वी कैन सी द आंसर. So, the effect of worldwide economic depression on India towards late 1920 was the defense expenditure was financed by war loans. Okay. ओके, इसके आंसर में भी थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा हमें। ओके, तो इकोनॉमिक डिप्रेशन का क्या असर पड़ा, असर ये पड़ा बच्चों कि जो भी हमारे यहाँ पे क्रॉप थे, क्रॉप के प्राइजेस जो हैं इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। ओके, सिंस 1926 से ये प्राइजेस जो हैं वो गिरने लग गए, और 1930 में ये प्राइजेस जो हैं बिल्कुल कोलैप्स कर गए। ठीक है, द प्राइजेस कोलैप्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड, देयर वाज टर्मोइल इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड में बहुत ही अशांति थी,
लोगों को समझ नहीं आ रहा था करें तो क्या करें, रेवेन्यू पे करें या अनाज जो है वो बेचें। ठीक है, सो दिस वाज द मेजर इफेक्ट। ठीक है, लोग जो प्राइजेस हैं वो बिल्कुल फॉल होते जा रहे थे 1926 से, और 1930 में बिल्कुल कोलैप्स हो। ओके, discuss the salt march to make clear why it was an effective symbol of resistance। ठीक है, तो सॉल्ट मार्च जो है वो बहुत ही इफेक्टिव मेथड था रेजिस्टेंस का अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्यों? गांधी जी थॉट दैट सॉल्ट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट colonialism। It was done in revolt against a commodity, salt. Okay, used by the rich and poor people alike। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ मेरे साथ लड़ाई पर चलो, युद्ध पे चलो, देश को आज़ाद कराना है, तो शायद सभी के सभी लोग रेडी नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी बात करूं जो तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है ना, जैसे मैं तुमसे बात करूं कि बच्चों चलो चलो सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस करवाना है, उसके लिए लड़ाई पे चलते हैं, तो डेफिनेटली तुम लोग रिलेट कर पाओगे, राइट? तो ये जो एक पूर्ण स्वराज वाला जो आइडिया दिया गया था लाहौर सेशन में, और उसके खिलाफ जो हम लोगों को पूर्ण स्वराज के लिए जो हम लोगों को पूरी की पूरी लड़ाई करनी थी, एक्चुअली में वो लड़ाई जो है ना वो इतनी इफेक्टिव हो नहीं पाई थी क्योंकि पीपल वर नॉट एबल टू रिलेट। तो गांधी जी ने क्या सोचा, सॉल्ट जो है वो तो रिच और पुअर दोनों कंज्यूम करते हैं, और सॉल्ट पे ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना ज़्यादा टैक्स लगाती है। लाइक इनिशियली दे यूज टू 57% टैक्स लगाती थी, लाइक समवेयर इन 1772, और 1780s में ये टैक्स जो है 75% हो चुका था। मतलब अगर आप 2 रुपए का नमक खरीद रहे हो तो 1 रुपये 15 पैसे तो जो है वो टैक्स में सरकार को ही चले जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में रियल कॉस्ट इसका कितना है, 85 पैसे ही है सॉल्ट का, लेकिन इतना सारा जो है वो टैक्स में चला जा रहा है। तो गांधी जी को लग रहा था कि सॉल्ट जो है वो, सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे रिच और पुअर दोनों ही परेशान है। So an item of daily use could resonate more with all classes of citizens, and then the abstract demand for the political rights। ये पॉलिटिकल राइट्स जो है उसके लिए मे भी सभी लोग इतना रिलेट नहीं कर पाए इससे, लेकिन सॉल्ट तो जो है वो डे टू डे लाइफ में कंज्यूम कर रहा है इंसान, और उसको समझ में भी आ रहा है कि भाई इतना महंगा नहीं होना चाहिए सॉल्ट। ओके, so the tax on salt and the government monopoly over its production was severely oppressive administrative move। तो गांधी जी को लग रहा था कि ये जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है ये सबसे रिप्रेसिव फेस दिखाता है ब्रिटिश सरकार का। इंडिया देखो बच्चों एक पेनिनसुला है, और वी हैव गॉट अ वेरी ह्यूज कोस्ट लाइन, है ना, लाइक 7516.6 किलोमीटर का। तो इंडिया में सॉल्ट प्रोड्यूस करना इज़ लाइक अ चाइल्ड्स प्ले। बहुत ईजिली हम लोग सॉल्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं, सॉल्ट की इंडस्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं किया करने दे रही थी गवर्नमेंट बोल रही थी सिर्फ हम ही सॉल्ट प्रोड्यूस करें। तो गांधी जी ने कहा ये तो बहुत ही रिप्रेसिव सिस्टम है यार ब्रिटिश गवर्नमेंट का। बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट नो इंडिया शोड देयर इंटेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन, एंड दे लेटर ऑन दे स्टार्टेड ब्रेकिंग ऑल द ऑपरेसिव लॉ। Salt March was effective also because Gandhi ji met a large number of commoners during the march, and he taught them true meaning of Swaraj and non-violence। जो एनसीएम मूवमेंट में नहीं हो पाया था, एनसीएम मूवमेंट में लोगों को पता ही नहीं था कि स्वराज का मतलब क्या है, सब अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं था कि हमें पूरा मूवमेंट नॉन वायलेंटली करना है। तो यहाँ पर गांधी जी ने कॉमन लोगों से मिले, वो पूरा का पूरा साबरमती से दांडी तक इन्होंने मार्च किया। ठीक है, और काफ़ी सारे कॉमन लोगों से मिले, 78 वॉलेंटियर्स थे इनके पास जो सभी लोगों को समझा रहे थे कि पूरा का पूरा जो हमारी लड़ाई है वो नॉन वायलेंटली ही हमें करनी है। सो बाय पीसफुली डिफाइंग लॉ एंड मेकिंग सॉल्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर्स, Gandhi ji set forth an example to the whole nation of how the oppressor could be confronted in the non-violent manner। This also led to the civil disobedience movement in 1930। So Gandhi ji was a leader who used to lead with an example। Okay, he always used to show कि अच्छा भाई ऐसे काम करना है। ठीक है, लाइक मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ ना वर्ड टू वर्ड, मेरा एक मकसद यही होता है बच्चों कि मैं तुमको बताऊं कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते हैं हम वर्ड टू वर्ड। जब हम लोगों ने पूरा का पूरा नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर पढ़ा तो मेरा एक पर्पस यही था कि मैं तुमको करके दिखाऊं, ना कि बोल के दिखाऊं। ऐसे आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद गांधी जी, बट आई वॉन्ट एवरी वन टू हैव दैट स्पिरिट ऑफ गांधी जी इन अस, देन ओनली वी कैन एक्चुअली डेवलप आवर कंट्री, वी कैन एक्चुअली डेवलप एज अ नेशन। ओके, जब हम सब में गांधी होगा ना,
और गांधी जी वाला एटीट्यूड होगा, तभी जाकर के हम अपने देश को बेहतर देश बना पाएंगे। ओके, तो गांधी जी करके दिखाते थे जनता को, उन्होंने करके दिखाया कि सॉल्ट लॉ मैंने ब्रेक किया, मैंने वायलेंस का कोई यूज़ नहीं लिया, फिर भी इतना इफेक्टिवली ब्रिटिशर्स को हराया। ओके, तो दिस वॉज समथिंग जो गांधी जी ने अपना एक एग्जाम्पल यहाँ पे शो किया कि नॉन वायलेंट तरीके से भी तुम सरकार को हिला के रख सकते हो। ओके, वाई डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ज्वाइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सो बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने CDM मूवमेंट जो है ना वो ज्वाइन किया था। The following were the different social groups who participated in the disobedience movement. The rich peasants, due to the trade depression, failing prices, and disappeared cash income, were not able to pay the revenue. And also, government refused to reduce the revenue. Their notion for Swaraj struggle was basically a struggle against revenue. So the rich peasants have participated. The poor peasantry groups, the meaning of Swaraj was lowering the revenue demand, and also they wanted the unpaid rent to be remitted. तो पुअर पेजेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। एक्चुअली NCM मूवमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है, NCM और CDM का जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि CDM में बहुत सारी फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया था, NCM में नहीं किया था। एंड दीज फीमेल्स मोस्टली बिलोंग टू द हाई कास्ट फैमिलीज इन द अर्बन एरियाज एंड रिच पेजेंट हाउस होल्ड्स फ्रॉम द रूरल एरिया। गरीब घराने में जो रिच पेजेंट्स थे उनकी फैमिली से फीमेल्स थी, और अर्बन एरियाज़ में हाई कास्ट, टाउन में जो हाई कास्ट फैमिलीज थी वहाँ से फीमेल्स आई थी, वो पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, तो फॉर देम इट वाज सेक्रेड ड्यूटी टू सर्व द नेशन। एंड अदर देन दैट किड्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आप देखोगे बिजनेसमैन, ओके, बिजनेसमैन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड एंड देन वर्कर्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। सो देयर पार्टिसिपेशन वॉज क्वाइट लिमिटेड। बिजनेसमैन इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे बिजनेसमैन, बिकॉज बार बार उनका जो ट्रेड है वो डिसरप्ट हो रहा था। ये बार बार जो स्ट्रगल्स हो रहे थे तो उनका ट्रेड जो है वो बार बार डिसरप्ट भी हो रहा था। पहली बार जब डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था ना, देन दे हैव पार्टिसिपेटेड विद लॉट ऑफ एंथुजियाज्म। लेटर ऑन उनका जो इंटरेस्ट है वो कम हो गया था। वर्कर्स जो हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, बट ऑल ओवर इंडिया में नहीं देखने को मिला पार्टिसिपेशन, क्योंकि कांग्रेस जो है ना वो बिजनेसमैन को सपोर्ट करती थी। अब एक ही को आप सपोर्ट कर सकते हो, या तो मालिक को या तो नौकर को, राइट। तो यहाँ पर बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रही थी, इसलिए INC वर्कर्स को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए इनका पार्टिसिपेशन थोड़ा कम देखने को। The Congress was reluctant to include the demands of the industrial workers in the program in its program of struggle. Analyze the reason. Yes, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि वर्कर्स जो हैं वो क्यों नहीं इतना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं CDM मूवमेंट के अंदर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिकॉज जो कांग्रेस है ना वो इनके डिमांड्स को कभी भी फोर फ्रंट पे लेकर नहीं आई थी। Some of the industrial workers who participated in civil disobedience movement were from the Nagpur industrial workers who selectively adopted some of the Gandhian ideas such as boycott of foreign goods. They participated in movement as a part of their own movement against the low wages, poor working conditions in the industries. देखो जब भी वर्कर आएंगे ना तो वहाँ पे 3 W's ही उनका डिमांड रहेगा। One is wages, next is working condition, and the third one is working hours. ठीक है, इन्हीं के अगेंस्ट सारा का सारा स्ट्रगल होने वाला होता है, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग आवर्स। तो यहाँ पर भी हमारे जो नागपुर के अंदर जो वर्कर्स थे उनका क्या डिमांड था कि उनकी वेजेस बढ़ाई जाए, वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव की जाए, एंड वर्किंग आवर्स की बात नहीं कर रहे थे ये लोग। सो इन द ईयर 1930-32 व्हाट हैपेंड, बहुत सारे रेलवे वर्कर्स और डॉक वर्कर्स क्या होते हैं जो शिपयार्ड वगैरह में काम करते हैं, दे वेंट ऑन स्ट्राइक। द छोटा नागपुर टिन माइंस वर्कर ऑल्सो प्रोटेस्टेड इन रैलीज वेयरिंग गांधीयन कैप। तो यू कैन सी नागपुर इंडस्ट्रियल एरिया एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है हमारा, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा वाला जो जगह है वो आ जाता है, वहाँ के टिन माइंस वर्कर जो थे ना, इन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया। They started wearing that Gandhi cap and they boycotted also the government. But the Congress was not willing to include their demands because he thought that this would alienate industrialists and divide the anti-imperial force. Okay, ऐसा लग रहा था कांग्रेस को कि इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे नाराज़ हो जाएंगे अगर हमने वर्कर्स के डिमांड्स को वर्कर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया या वर्कर्स को इंक्लूड करना शुरू कर दिया।
एनालाइज द रोल ऑफ मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ओके, अभी मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में भी बताना है हमें. The Indian merchants and industrialists became rich and powerful due to huge profits they made during the First World War. I have told you 1914 से 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना वही सारा सामान बना करके वेस्टर्न कंट्रीज़ में बेच रहे थे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ के मैक्सिमम लोग जो थे वो तो लड़ाई में लगे हुए थे. इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर्स चाहिए होते थे दे वर ऑल्सो समवेयर वर्किंग फॉर द आर्मी ऑफ देयर कंट्रीज़. ओके, अपनी अपनी कंट्री के आर्मी में काम कर रहे थे. तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हुई थी वर्ल्ड वॉर वन के टाइम. वर्ल्ड वॉर वन के टाइम उनको जो भी वॉर से रिलेटेड गुड्स चाहिए होता था या बेसिक नेसेसिटी का भी जो आइटम चाहिए होता था वो सब इंडिया से ही प्रोड्यूस होकर के जा रहा था. तो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये लोग काफ़ी प्रॉफिट इन लोगों ने कमाया था. ओके, so what they had two demands now after the end of the world war or in the 1930s कि CDM इसी टाइम पर हुआ है. इनके क्या डिमांड थे भाई? they wanted protection against the import of foreign goods and they wanted favorable exchange ratio of rupee and sterling. तो स्टर्लिंग जो है ना बच्चों वो तो एक डॉलर, जैसे अभी डॉलर है करेंसी वैसे ही पहले स्टर्लिंग हुआ करती थी. तो $1 इज इक्वल टू लाइक अराउंड 74 रुपीज़ राइट नाउ ना. तो ये जो पहले 1 स्टर्लिंग इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज़ हुआ करता था, लाइक इट वाज अराउंड 1 रुपीज़ ओनली. तो ये जो है ना एक नॉर्मल रेशियो चाहते थे. ओके, ये नहीं चाहते थे कि ये फ्लक्चुएट होता रहे बार बार ये रेशियो. एंड जो फॉरेन गुड्स यहाँ पर बिक रहे हैं उस पर इनको थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए था कि कुछ तो बैरियर लगाओ, बाहर से ही सारा सामान ला कर यहाँ बेचोगे तो हमारा तो सामान ही नहीं बिकेगा. ठीक है. So in the year 1920 and 27, what happened? These merchants and traders have formed some organization also. Indian Industrial and Commercial Congress and FICCI, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries, were formed by the Indian merchant and industrialists to organize their business interest. According to the merchants and industrialists, the meaning of Swaraj was expansion of trade and business without restriction by colonial government. बट दे वर डिसहार्टेंड ड्यू टू द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो इनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था? जब ये लोग अपने ट्रेड और कॉमर्स को एक्सपैंड कर पाए. ठीक है, हर बिजनेसमैन का हमेशा यही मोटिव रहता है कि वो जो बिजनेस कर रहा है उसको एक्सपैंड कर पाए. राइट, अगर एक जगह पे बिजनेस कर रहा है, एक पर्टिकुलर चीज़ में बिजनेस कर रहा है तो और भी एरियाज़ में वो बिजनेस कर पाए. जैसे तुम लोग रिलायंस को देखते होगे, टाटा को देखते हो, रिलायंस पेट्रोल भी बेच रहा है, रिलायंस जो है वो रिलायंस फ्रेश में जाओगे तो ग्रॉसरी भी बेच रहे हैं, रिलायंस ट्रेंड में जाओगे तो कपड़े भी बेच रहे हैं, रिलायंस जूल में जाओगे तो सोना चांदी भी बेच रहे हैं. ठीक है, ऐसे ही टाटा है. टाटा इज़ मेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर. टाटा का सॉल्ट भी आ रहा है, सॉफ्टवेयर भी आ रहा है. तो एक्चुअली में बिजनेसमैन क्या चाहते थे? वो अपना ट्रेड एक्सपैंड करना चाहते थे एंड दे वांटेड सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि बाहर से सारी चीज़ें मत लेकर आओ, फिर हमारा सामान कौन खरीदेगा. ओके, लेकिन जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे वो फेल हो गया था. उसके बाद से ये लोग जो है ना अपना इंटरेस्ट लूज करने लग जाते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से. सो दे वर ऑल्सो वरिड कि अरे बार बार अगर रेवोल्यूशन होगा तो हमारा बिजनेस इंटरप्ट होता रहेगा, है ना. तो वो लोग, इनके मन में वो भी टेंशन थी. पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड जीडी बिरला वर प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट who supported the civil disobedience movement, given financial assistance, refused to buy and sell foreign goods and attacked the colonial control. Yes, so Purushottam Das, Thakur Das and G.D. Birla, they also supported financially the INC. INC को ये लोग financially भी support कर रहे थे. Okay, एंड ये लोग जो हैं colonial government के अगेंस्ट जाकर के बात भी करते थे. फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने से भी मना कर दिया था. So this is how they also contributed in the civil disobedience movement and they played a very good role, important role in the movement. What is separate electorate? Why do you think Gandhi ji was against the demand of separate electorate by B.R. Ambedkar? Okay बच्चों, तो सबसे पहले तो मैं आपको सेपरेट इलेक्टोरेट और जनरल इलेक्टोरेट क्या होता है ना इसका फंडा क्लियर करूँ. ठीक है, देखो आज के टाइम पर ना तुम लोग सुनते होगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज. कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? जब हम एरियाज को डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन
Why do we divide areas into different constituency on the basis of population? For the ease of conducting election. Okay, क्योंकि हमें इलेक्शन जो है वो स्मूथली कंडक्ट करना होता है. ओके, तो एक्चुअली दो तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की जा सकती है. एक तो हो सकता है सेपरेट इलेक्टोरेट. कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड इलेक्टोरेट आर बोथ द सेम थिंग. वन इज सेपरेट इलेक्टोरेट एंड अनदर इज जनरल इलेक्टोरेट. ओके, तो व्हाट यूज्ड टू हैपन इन सेपरेट इलेक्टोरेट, जो वोटर्स होते थे वो बोला जा रहा था कि सिर्फ दलित्स होंगे. ठीक है. एंड जनरल इलेक्टोरेट्स में गांधी जी वॉज डिमांडिंग दैट एवरीवन शुड गेट द राइट टू वोट. जो लीडर्स होंगे सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर वो दलित्स होंगे, ऐसा बी आर अम्बेडकर साहब कह रहे थे. और गांधी जी ने कहा कि ठीक है भाई, दलित्स होंगे, चलेगा. ओके, तो बच्चों देखो, अगर हम सिर्फ दलित्स को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देने का राइट रखते हैं तो क्या होगा, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ दलित पॉपुलेशन ही रहना चाहिए. कोई और पॉपुलेशन वहाँ पे क्यों रहेगी जब उसको वोट ही नहीं मिलेगा. ठीक है, तो सपोज ये एक सेपरेट इलेक्टोरेट है, यहाँ से धीरे धीरे जो बाकी के पॉपुलेशन है वो माइग्रेट करने लग जाएगी दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, क्योंकि यहाँ पे उनके पास वोटिंग राइट्स ही नहीं है. इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ और सिर्फ कौन रहेंगे, दलित्स रह जाएंगे. और ये मेन सोसाइटी से लेटर ऑन क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे. ठीक है ना. तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि नहीं, यहाँ पर तुम दलित लीडर रख लो लेकिन वोटिंग राइट्स जो है सबको दे दो. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन राइट नाउ इन इंडिया इन रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज. रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है ना SC/ST के लिए, तो वहाँ पे यही होता है. लीडर जो है वो तो दलित रह सकते हैं लेकिन वोटर्स जो हैं वो सभी के सभी होंगे. अभी समझ आ गया डिफरेंस आपको. नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन अगेन. व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट? व्हाई डू यू थिंक गांधी जी वाज अगेंस्ट द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट? ओके, so separate electorates are usually demanded by minorities who feel it would otherwise be difficult for them to get a fair representation in government. Separate electorate for Dalit means Dalit will choose their separate leader by separate elections for Dalit. Okay, so Dalit are going to choose their leaders. Only Dalits are going to be the voters and they are going to choose their own Dalit leaders. Understood? पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ दलित्स के लिए होगा. दलित से पार्टिसिपेट करेंगे, दलित ही लीडर होगा. Gandhiji was against the demand of separate electorate of Dr. B.R. Ambedkar because he believes that separate electorates of Dalit would slow down the process of their integration into the society. इससे ये कभी भी सोसाइटी में मिक्स नहीं हो पाएंगे और इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे. पहले भी अनटचेबल बिल्कुल सोसाइटी में अलग थलग थे और अभी भी अलग थलग हो जाएंगे. पहले तो सोशली बॉयकॉटेड थे, अभी पॉलिटिकली भी वो अलग हो जाएंगे. So this will create a lot of differences in India. In fact, I would say divisions. Okay, there's a difference between difference and division. देखो difference हर जगह होगा, लेकिन division मतलब होता है तोड़ देना, टूट जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे बिल्कुल सोसाइटी से, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं. Identify the reasons that why Muslim political organizations in India were lukewarm in their response to the civil disobedience movement. So kids, there were two limits of civil disobedience movement. Okay, the one were Dalits and another one were Muslims. Muslims ने भी इतना ज़्यादा participation नहीं दिखाया था civil disobedience movement. तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं दिखाया इंटरेस्ट उन लोगों ने. Okay, so some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to the CDM. After the decline of non-cooperation Khilafat movement, a large section of Muslims felt alienated from the Congress. Yes, since the non-cooperation Khilafat movement was unsuccessful and the powers of Caliph were reduced drastically, movement करने के बाद भी Caliph के powers को reduce कर दिया गया, तो अब जो Muslims है ना वो कांग्रेस से इतना ज़्यादा connect नहीं कर पा रहे थे. Okay? From the mid-1920s, the Congress came to be more visibly associated openly Hindu religious nationalist group like Hindu Mahasabha. Hindu Mahasabha was also one of the prominent political parties at that time. और अभी कांग्रेस की पिक्चर भी वैसी हो गई थी मुस्लिमों के नज़र में कि भाई ये जो है ना, ये भी एक हिंदू कम्युनिटी वाली पॉलिटिकल पार्टी है और ये हिंदू रिलीजन को क्या कर रही है, प्रमोट करना चाह रही है. As relation between Hindus and Muslims worsened,
Each community organized religious processions with militant fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities. अब धीरे धीरे क्या आप देखते हो कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो तनाव है वो बढ़ते जा रहे हैं, जो खटास है वो बढ़ती जा रही है, और हर जगह पे रिलीजन के नाम पे लड़ाइयाँ होने लग गई. ओके, इनफैक्ट वायलेंट लड़ाइयाँ होने लग गई. और इस टाइम पे आप देखोगे गांधी जी भी बिल्कुल महात्मा वाले स्टेज में आ जाते हैं. एंड ही सेड कि ओके, अगर तुम्हें लड़ना ही है, बार बार तुम्हें वायलेंस ही करना है, देन लेट इट बी. आई एम गोइंग टू इम्प्रूव द सिचुएशंस ऑफ दलित्स एंड आई एम गोइंग टू वर्क फॉर द अनटचेबल्स. मेरे लिए वो काम करना ज़्यादा अच्छा है, इंस्टेड ऑफ तुम्हारे बार बार के वायलेंट लड़ाई में. मतलब वायलेंट लड़ाई तुम बार बार करोगे तो मुझे तो गुस्सा आएगा. ठीक है. एवरी राइट डीपेंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़. और जैसे जैसे राइट्स बढ़ते गए, हिंदू और मुस्लिम जो वो दूर होते गए और उनके बीच का तनाव बढ़ता गया, उनके बीच का खटास बढ़ता गया. ठीक है. एंड दैट इज़ वाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि 1930 में हुआ था, और ये जो लड़ाइयाँ हैं ये 1928 से चली आ रही थी. तो 1930 में जब गांधी जी ने CDM लॉन्च किया तो एक्चुअली में इतना ज़्यादा मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेशन में इंटरेस्ट नहीं दिखाया. How did the revival of Indians folklore develop the ideas of nationalism among the Indians? Explain. Okay बच्चों, तो अब हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं. लास्ट टॉपिक के आंसर्स करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डू द क्विज. ओके, अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ. सच में ऐसे क्वेश्चंस आपने आज तक देखे ही नहीं होंगे. ऑल द क्वेश्चंस आर रियली न्यू एंड अमेजिंग. ओके, देखो लगातार पढ़ा पढ़ा के ना गले में बहुत दर्द हो जाता है. दैट इज़ वाई आई कीप सिपिंग सम वार्म वाटर. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. हाँ, आप लोग को भी हमेशा गर्म पानी पीते रहना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा बात करने की आदत है. So how did the revival of Indians folklore develop the ideas of nationalism among the Indians? Indian folklore का मतलब क्या होता है? folk stories. folk stories के चलते लोगों के अंदर nationalism की भावना कैसे आ गई, ये बताना है. Idea of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. In late 19th century India, nationalists began recording folk tales sung by bards and they toured villages to gather folk songs and legends. Okay, तो जो nationalist लोग थे ना, जो कि एक्चुअली में देश को यूनाइट करवाना चाहते थे, उन्होंने बहुत सारी, इंडिया देखो बहुत बड़ा देश है ना, हर जगह पे आपको लोक कहानियाँ देखने को मिलेंगी. हर जगह पे कोई पर्टिकुलर जो लैंग्वेज होती है उसके सॉन्ग्स बहुत फेमस होते हैं, गीत बोलते हैं ना हम जिसको. एंड हर जगह पे अलग अलग फोक हीरोज़ हुआ करते थे. जैसे अलूरी सीताराम राजू थे हमारे फोक हीरो थे, वो गुडम हिल्स में मतलब आंध्रा में. तो ऐसे कई सारे लेजेंड्स हुआ करते थे, कई सारे फोक सॉन्ग्स गाए जाते थे. अब ये नेशनलिस्ट लोगों ने क्या किया, हर जगह घूम घूम करके इन्होंने ऐसी स्टोरीज कलेक्ट करना शुरू की. ओके, कभी भी तुम देखते हो ना वो रियलिटी शोज होते हैं, उसमें कभी कभी वो देशभक्ति वाले गाने पे डांस करते हैं, या कोई सिंगिंग वाला जो रियलिटी शो होता है वहाँ पे देशभक्ति वाला गाना जब वो लोग गाते हैं, सो वी गेट सो मच मूव्ड ना, कई बार हमारे आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, है ना. ऐसे ही फोक स्टोरीज जो है इन लोगों ने कलेक्ट किया, जनता के सामने रखा. जनता के सामने रखा तो जनता को बहुत प्राउड फील हुआ, वाओ हमारे जो स्टोरीज हैं वो बुक्स में आ गई हैं, है ना. These tales they believed gave true picture of the traditional culture and they had that had been corrupted and damaged by outside forces. ये जो बुक्स के अंदर स्टोरीज हुआ करती थी, जब वो स्टोरीज पढ़ते थे तो उनको लगता था कि हाँ हमारा कल्चर जो है वो सच में बहुत अच्छा कल्चर है एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर. और उनको लगता था ये जो बाहर के फोर्सेस आए हैं, ब्रिटिशर्स आए हैं, वो हमारे कल्चर को ख़राब कर रहे हैं. ठीक है, जैसे हम लोग नमस्ते करते हैं तो वो लोग शेक हैंड करते थे. तो बेसिकली हमारा खुद का कल्चर हम लोग भूलते जा रहे थे, और इन चीज़ों को बुक में बताया गया कि नहीं हमारा नमस्ते वाला कल्चर जो है वो बेस्ट कल्चर है. ओके, तो लोगों को समझ आया कि बाहर के फोर्सेस आने की वजह से अपना कल्चर डिटीरियोरेट हो रहा है. It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past. और हमें ये फोक ट्रेडिशंस जो हैं हमारे उसको बचा के रखना है,
then only we are going to have our identity. We can हम लोग अपनी खुद की आइडेंटिटी जो है वो बना पाएंगे, सामने रख पाएंगे लोगों के, अदरवाइज हमारा कल्चर बिल्कुल मिक्स हो जाएगा. ओके. In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes and myths and the movement of the folk revival. And इसमें आप बच्चों एक और पॉइंट पे लिख सकते हो नटेसा शास्त्री जी का, जिन्होंने द फोकलोर ऑफ तमिल स्टोरीज ऐसा कुछ लिखा था, जिसमें 4 वॉल्यूम्स में जिसको पब्लिश किया गया था 4 वॉल्यूम्स में. तो वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका. ओके, आपको दोनों ही लिखने हैं. Can you identify the different limitations of civil disobedience movement? Of course, we can identify. So, a limited participation of Dalit was the first limitation. Dalit participation in civil disobedience movement was very limited, particularly in Maharashtra and Nagpur, जहाँ पे उनका organization बहुत strong था. Why they did not participate? Because actually they have never been included in the mainstream society. उनके साथ हमेशा ही discrimination किया जाता था, इसलिए उन्होंने CDM में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया. No participation of Muslims. Some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to CDM. After the non-cooperation Khilafat movement, Muslims felt alienated from the Congress. जैसे ही non-cooperation movement ख़त्म हुआ unsuccessfully, तो और जो उनके खलीफ थे उनका पावर तो रिड्यूस कर दिया ब्रिटिशर्स ने, तो उनको कोई फ़ायदा मिला नहीं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करने का. दैट इज़ वाई दे डिड नॉट पेड मच अटेंशन इन द CDM. ओके. डोमिनेंट रोल ऑफ सनातनीज एंड हिंदू महासभा. जो सनातनीज थे वो एक्चुअली हाई कास्ट ब्राह्मण हुआ करते थे, एंड हिंदू महासभा वॉज वन पॉलिटिकल पार्टी. इन दोनों का डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा था देश के अंदर. ड्यू टू फियर ऑफ सनातनीज द कंजर्वेटिव हाई क्लास हिंदू कांग्रेस इग्नोर्ड दलित्स. कांग्रेस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी थी, उसने कभी दलित्स के डिमांड को सामने रखा ही नहीं, ना तो उनको कभी किसी भी मूवमेंट में इंक्लूड किया. क्यों? बिकॉज उनको लगता था कहीं इससे सनातनीज गुस्सा ना हो जाए. कांग्रेस वॉज वेरी क्लोज टू हिंदू महासभा ऑल्सो. हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज द एफर्ट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. और हिंदू महासभा जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि भाई मुस्लिमों को कोई रिप्रेजेंटेशन मिले, कोई रिजर्वेशन मिले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में या प्रोविंशियल काउंसिल में. इससे मुस्लिम जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे CDM में पार्टिसिपेट करने के लिए. क्लैश बिटवीन BR अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी. इन 1930 व्हाट हैपेंड? Dr. BR Ambedkar clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorate for the Dalits. That is why when the CDM was launched in 1932 again, actually Dalits were not interested in participating in the movement. Participants have different aspirations. Yes, यहाँ पर भी आपने देखा था बच्चों, रिच पेजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, पुअर पेजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, मर्चेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया है, वुमेन ने पार्टिसिपेट किया है. और सबका जो पर्पस है CDM मूवमेंट करने का या पार्टिसिपेट करने का वो अलग अलग है. ठीक है, किसी को रेवेन्यू में रिडक्शन चाहिए, किसी को रेंट नहीं पे करना है, किसी को अपना ट्रेड एक्सपेंस करना है, किसी को वेजेस की प्रॉब्लम है, किसी को वर्किंग कंडीशन की प्रॉब्लम है. तो नो वेयर पीपल इज टॉकिंग कि वी हैव प्रॉब्लम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिशर्स शुड लीव इंडिया. एवरीबडी इज हाईलाइटिंग देयर ओन प्रॉब्लम. So there was a lack of synchronization among the people. Okay, so participation had their own interest and aspiration. There was contrast between the demands of industrialist and working class. Contrast was also seen in the demand of rich peasants and poor peasants. So united struggle was not there. United होकर के नहीं लड़ रहे थे, हम अकेले अकेले लड़ रहे थे. इसलिए ये जो लड़ाई थी अपनी CDM वाली वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही. दो इट वॉज इफ़ेक्टिव ऑफ कोर्स. इससे एक मैसेज जो है वो तो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि अभी ज़्यादा दिन तक अपनी चलने वाली नहीं है. ठीक है, और इंडियंस का टाइम जो है वो आ गया है, ऐसा उनको समझ में तो आ ही गया था. Explain the contribution of Gandhiji to uplift the position of untouchables in the society. Okay, so Gandhiji has declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. गांधी जी ने बहुत स्ट्रांगली कह दिया था कि भले तुम लोग कितना भी लड़ लो, भले तुम लोग कितना भी प्रोटेस्ट कर लो, नॉन वायलेंटली प्रोटेस्ट कर लो, आंदोलन कर लो, तुम्हें स्वराज तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम अनटचेबिलिटी को ख़त्म नहीं कर लेते हो.
Actually, Gandhiji had this realization from the very young age, like when he was 7 years old and he went to school, he realized कि अनटचेबल्स के साथ कुछ तो भी गलत हो रहा है, उनको स्कूल में नहीं आने दिया जा रहा है. एंड उनको हमेशा से ये फीलिंग थी कि यार ये गलत है. ही डिड नॉट एक्सेप्टेड इट. सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सोशल प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमें गलत लगती हैं, राइट, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अच्छा चलो बेटियां हैं तो उनकी पूजा कर लेते हैं घर के अंदर, उसके लिए स्पेशली खाना वाना बना लेते हैं. लेकिन बहुएं हैं वो भी तो गर्ल्स ही हैं ना, लेकिन उनके लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, खाना नहीं बना रहे हो. मतलब खाना इन द सेंस जो पूजा वगैरह में हम लोग ऐसे प्रसाद चढ़ाते हैं ना स्पेशली, तो कुछ चीज़ें होती है सोसाइटी के अंदर, वो क्या होता है, गलत हो रहा होता है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते. गांधी जी ने 7 years के एज से ही समझ लिया था कि अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस सोसाइटी में हो की जा रही है वो गलत की जा रही है. ओके. ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन्स, चिल्ड्रन ऑफ गॉड. उन्होंने अनटचेबल्स को, जो कि खुद अपने आप को दलित्स कहते थे, दलित्स का मतलब होता है ब्रोकन, ठीक है, उन्होंने उनके लिए एक नया नाम स्टार्ट किया, बोला हरिजन्स. ये क्या है, ये चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं, भगवान के बच्चे हैं. ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू द टेम्पल्स and access to public wells, tanks, roads and school. उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह किए, उनको टेम्पल में एंट्री दिलवाई, उनको स्कूल्स में, रोड्स में, वेल्स, टैंक्स, इन सब में उनको एंट्री दिलाई. He himself cleaned toilets to dignify the work of Bhangi. He persuaded the upper caste to change their heart and give up the sin of untouchability. गांधी जी ने खुद उनका काम किया, उनके जो काम है उनको बहुत छोटा समझा जाता था. गांधी जी ने बोला कि नहीं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है. ओके. एंड ही परसुएडेड द अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट. जो अपर कास्ट है उनको बताया कि अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ा सिन है और तुम्हें ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए. ठीक है. ओके, सो नाउ द क्विज हैज स्टार्टेड. अभी मेरे को जल्दी जल्दी से इसका आंसर बता दो. व्हाट वाज द कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट? मास प्रोसेशन, वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ करता था, मीटिंग्स हुआ करती थी, राइट्स हुआ करते थे. राइट्स का मतलब होता है दंगे. सो 5 4 3 2 1 एंड द आंसर इज मास प्रोसेशन. ये जो आपकी इमेज है, बिल्कुल फर्स्ट इमेज है बुक के अंदर, यहाँ पे देखो दिया हुआ है 6 अप्रैल 1919 मास प्रोसेशन ऑन द स्ट्रीट्स बिकेम द कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट. हम लोग ऐसा नहीं है बंदूक लेकर निकल गए और अंग्रेज़ों को मार रहे हैं, हम लोगों ने मास प्रोसेशन किया. दैट वाज द कॉमन फीचर. सारे, इतने सारे कॉमन लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इकट्ठा होकर के आंदोलन कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों को उनके घर वापस भेजना है, हमें खुद का रूल चाहिए. ओके. तो बच्चों, जो आपके इमेजेस होते हैं ना वहाँ पे, ये तो पढ़ने में भी बड़ा मज़ेदार भी होते हैं ना. राम भरोसे हिंदू होटल है ना. और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये बड़ी काम की होती है, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पे. हु पार्टिसिपेटेड इन साउथ अफ्रीका मार्च थ्रू वॉक ट्रस्ट 6 नवंबर 1913. 1913 में गांधी जी थे साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर भी ये सत्याग्रह मूवमेंट कर रहे थे, हमने पढ़ा ना. तो वहाँ पे वॉक ट्रस्ट मार्च, जैसे अपने यहाँ पे दांडी मार्च हुआ है ना, वैसे वॉक ट्रस्ट मार्च हुआ था. तो उसमें किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियन फार्मर्स ने, साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियन लॉयर्स ने, साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियन वर्कर्स ने, या फिर डी, साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने. कंप्यूटर महाशय, बच्चों के आंसर लॉक कर लिया जाए. जल्दी से मेरे को बता दो क्या आंसर है तुम लोगों का. जो मैक्सिमम आंसर होगा उसी को मैं लॉक करूंगी. A, B, C, D. 5 4 3 2 1 and the answer is Indian workers. Indian workers actually participated. ये देखो, ये सेकेंड इमेज है, यहाँ पे देख रहे हो तुम, यहाँ पर भी कितने सारे लोग हैं ना. ये भी एक मार्च हो रहा था ना, वॉक रस्ट मार्च जिसे कहा जाता है. इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका थ्रू वॉक रस्ट 6 नवंबर 1913. इंडियन वर्कर्स ने मोस्टली पार्टिसिपेट किया था. महात्मा गांधी वॉज लीडिंग द वर्कर्स फ्रॉम न्यू कैसल टू ट्रांसवाल. When the marchers were stopped and Gandhiji arrested, thousands of more workers joined the satyagrahis against the racist laws. तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था बच्चों यहाँ पे. एंड जैसे ही उनको अरेस्ट किया गया, यू कैन सी इतने सारे वर्कर्स जो हैं वो और ज्वाइन कर लेते.
विच इवेंट इन दिस पिक्चर इज दिस पिक्चर रिलेटेड टू? ये पिक्चर जो है आपकी बुक में ही है ना? ये पिक्चर जो है वो किस इवेंट से रिलेटेड है? ए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सी, जालियांवाला बाग इंसिडेंट, और डी, चौरी चौरा इंसिडेंट। ये तो बहुत ही ईजी है यार, जल्दी से आपको आंसर करना है। 5 4 3 2 1। So the answer is, this is related with the Jallianwala Bagh incident. Okay, so the answer was B option। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर ये जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे क्रॉलिंग ऑर्डर्स दिया गया है। जो जनरल डायर था, ठीक है ना, उसके क्रॉलिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। What was seen as the symbol of Western economic and cultural domination? आज के टाइम पर जैसे मैं बोलूँ बच्चों, चाइनीज़ डोमिनेशन कौन से प्रोडक्ट को देख के तुमको लगता है? तो यू कैन से कि अच्छा मैम चाइनीज़ टॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं, या फिर चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं उससे हमें पता चलता है कि चाइनीज़ डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। ऐसे ही उस टाइम पे किसके थ्रू समझ में आता था वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन? थ्रू देयर लॉज, थ्रू फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, थ्रू फॉरेन क्लोथ्स और इंग्लिश एजुकेशन। आई थिंक बहुत ही बड़ा हिंट दे दिया है मैंने तुम लोगों को। तो ए बी सी डी क्या होगा आंसर? जल्दी जल्दी बता दो। 5 4 3 2 1 गो, एंड द आंसर इज foreign cloth. Foreign cloth was the symbol, was seen as the symbol of Western economic and cultural domination. तो यहाँ पर देख रहे हो ना, ये जो पर्टिकुलर पिक्चर है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का है। जब यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों दिख रहे होंगे आपको, ये फ्लैग दिख रहा है ना, यहाँ पे फोटो भी दिख रही है, पगड़ी वाले लोग और ये मुस्लिम कैप वाला भी लोग हैं, सबने पहन रखा है ना। ये सारे के सारे लोग जो हैं हिंदू और मुस्लिम साथ में क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? दे आर बॉयकॉटिंग द फॉरेन क्लोथ। वाई? बिकॉज फॉरेन क्लोथ वॉज सीन एज द सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन। इसलिए क्लोथ्स को बॉयकॉट किया जाता था और खादी को प्रमोट किया जाता था। Which statement is incorrect? Chauri Chaura incident took place in 1922. At Chauri Chaura, a violent demonstration was going on in the bazaar. Mahatma Gandhi called a halt to the non-cooperation movement because of Chauri Chaura incident. I think ये तो सही है, ये ऑप्शन हटा देती हूँ। ठीक है, तो अभी आपको A, B और D में से बताना है। चौरी चौरा इज लोकेटेड इन गोरखपुर। चलो 5 4 3 2 1 गो, एंड द आंसर इज बच्चों पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो चल रहा था। देखो पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी, ये सारी आपको लगभग 22 पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो जल करके मर गए थे। ओके, सो चौरी चौरा इन गोरखपुर, अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन वाज गोइंग ऑन, बट लेटर ऑन इट टर्न्ड इनटू अ वायलेंट demonstration because of the clashes with the police. This is the picture of meeting of Congress leaders at Allahabad 1931. So you have to identify and name any 4 leaders in the picture. चलो ये क्वेश्चन जो है ना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आजकल आने लग गए हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर तुम लोगों ने देखा होगा तो पता चल ही गया होगा लेवल क्या है। इसमें कोई भी 4 लीडर्स के बारे में बताना है। तो बच्चों इसमें लीडर हैं महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके, देन वी हैव जवाहरलाल नेहरू साहब एंड सुभाष चंद्र बोस। ओके, ये मीटिंग जो है वो इलाहाबाद में चल रही है 1931, और यहाँ पे सारे लोगों का भी नाम दिया। During the Salt March, Mahatma Gandhi was accompanied by dash number of volunteers. On the way, they were joined by thousands. So, how many volunteers accompanied Mahatma Gandhi in the Dandi March? 78, 99, 100 or 18? A, B, C, D. This is the picture of Dandi March. कहाँ से कहाँ तक हुआ था? साबरमती से स्टार्ट हुआ था, साबरमती आश्रम in Ahmedabad. It's a very beautiful ashram. Go and visit once the corona is over. And then दांडी तक हुआ गए थे ये, ठीक है, एंड स्टार्ट किया था 12 मार्च को, एंड हुआ था 6 अप्रैल को। 240 मील चले थे, 24 डेज लगे थे, ठीक है ना। चलो अभी आंसर बता दो जल्दी से। आई थिंक योर आंसर इज, यहाँ पर आंसर क्या है बच्चों? ए है आंसर। 78 volunteers. The picture was taken in 1930. It shows how people picketed liquor. यहाँ पे क्या दिख रहा है?
जो जनता है वो लिकर शॉप को पिकेट कर रही है, पीपल बॉयकॉटेड फॉरेन गुड्स, पुलिस क्रैक्ड डाउन ऑन सत्याग्रहीज और वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। क्या दिख रहा है तुम लोगों को बच्चों? इसका आंसर है पुलिस क्रैक्ड डाउन ऑन सत्याग्रहीज। ठीक है, क्योंकि देखो फीमेल तो यहाँ दिख नहीं रही है, तो ऑब्वियसली ये तो आंसर होगा नहीं। पीपल बॉयकॉटेड फॉरेन गुड्स, तो यहाँ पे कुछ वो बॉनफायर वगैरह जला रहे होते, या लिकर शॉप होता तो शॉप तो दिखता, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ पर। हाँ आपको, लेकिन ये पुलिस की वर्दी में लोग ज़रूर दिख रहे हैं, है ना, पुलिस की वर्दी में, और यहाँ पे 2 ऑब्जर्वर्स भी हैं। तो ये क्या है? बेसिकली पुलिस क्रैक्ड डाउन ऑन सत्याग्रही। In dash areas, these women were from high caste families, and in dash areas, they came from the rich peasants' house. तो यार यहाँ वुमेन ज्वाइन नेशनलिस्ट प्रोसेशन, यहाँ पे देखो कितनी सारी फीमेल्स नेशनलिस्ट प्रोसेशन को ज्वाइन किया है। Many women for their first time in their lives moved out of their homes onto the public arena. Among the marchers, you can see many old women and mothers with children in their arms. यहाँ पर बच्चों को भी गोद में ले करके ये मार्च में पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये वुमेन कौन सी थी? हाई कास्ट फैमिली को कहाँ पे ये बिलोंग करती थी? रूरल में, अर्बन में, अर्बन में, रूरल में, विलेज में, सिटी में, वेस्टर्न प्रोविंस एंड नॉर्दर्न प्रोविंस। सो द आंसर इज माय डियर किड्स, ओके आंसर दिया नहीं है तो ये होगा यहाँ पर आंसर बी। ठीक है, अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज। In this image taken in 1935, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and Maulana Azad are shown at Sevagram Ashram. Where is this ashram located? ये सेवाग्राम आश्रम कहाँ पे है? इलाहाबाद, अहमदाबाद, कानपुर और वर्धा। तो A, B, C और D क्या होने वाला है आंसर? 5, 4, 3, 2, 1 go। एंड द आंसर इज बच्चों, आंसर यहाँ पे है नहीं, आंसर इज डी, ये वर्धा में है सेवाग्राम आश्रम। आइडेंटिफाई द लीडर इन दिस पिक्चर। लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो दिस इमेज इज ऑफ बाल गंगाधर तिलक साहब। ओके, और यहाँ पर क्या है बेटा? चारों आपको रिलीजियस प्लेसेस दिख रहे होंगे। यहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, ओके, एंड यहाँ पे कोई आश्रम है, यहाँ पे सारे भगवान आपको दिख रहे हैं। तो ये यूनिटी जो है ना वो दिखाने की कोशिश की जा रही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पिक्चर के थ्रू। ठीक है, हु पेंटेड दिस इमेज ऑफ भारत माता एंड व्हेन? सो ये जो पर्टिकुलर इमेज है, एस्थेटिक इमेज ना, भारत माता को बिल्कुल संत के टाइप बताया गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1950, Abanindranath Tagore in 1905, Abanindranath Tagore in 1950, or Ravi Verma in 1905. So the answer is this image was drawn by Abanindranath Tagore in 1905. Notice that the mother figure here is shown dispensing learning, food, clothing. The mala in one hand emphasizes her ascetic quality. Abanindranath Tagore, like Ravi Verma before him, tried to develop a style of painting that could be seen as truly Indian. ये बिल्कुल truly Indian style of painting इन्होंने की थी। Actually inspired थे somewhere from his cousin brother Rabindranath Tagore. What is Nehru shown holding in his hand? Image of Bharat Mata, map of India, both the above, none of them. जल्दी से बता दो। 5, 4, 3, 2, 1 एंड द आंसर इज बच्चों, एक बुक तो है लेकिन यहाँ पे भारत माता का मैप भी है। So Nehru is shown holding the image of Bharat Mata and the map of India close to his heart. In a lot of popular prints, nationalist leaders are shown offering their heads of Bharat Mata, heads to Bharat Mata. The idea of sacrifice and mother was powerful within the popular imagination. This figure of Bharat Mata is contrast to one painted by Bankim Chandra Chattopadhyay, Abanindranath Tagore, Ravi Verma or none of the above. ये तो यार क्वेश्चन अभी बता दिया मैंने, ये अबनिंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग का बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। वहाँ पर भारत माता को बहुत ही पीसफुल एस्थेटिक दिखाया गया था, यहाँ पे भारत माता को बहुत पावरफुल दिखाया जा रहा है ना। पीछे ये पीसफुल सिंबलाइज भी करता है, भगवान है, सरस्वती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, बट यहाँ पर एलिफेंट और लायन दिखाया गया है, जो कि क्या है, दीज आर द सिम्बल्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी।
बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है ये अवनींद्र नाथ टैगोर की पेंटिंग से। तो किड्स यही था हमारा आज का पूरा लेक्चर। आई होप ये तुम लोगों को पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके पास कम टाइम हो तो आप इसको स्पीड को एडजस्ट करके भी देख लो, लेकिन ज़रूर देख लेना, ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, अब ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम में। मैनेज गोल क्लास 10 सेलेक्ट करो, ग्रेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। यू कैन गो फॉर 6 मंथ और 12 मंथ्स, वट एवर इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। एंड देन आप यहाँ पर RSYT कोड यूज़ करिए, 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। एंड क्रेडिट्स जो हैं उससे और 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, क्रेडिट्स अर्न कैसे कर सकते हो? जब आप स्पेशल क्लासेस अटेंड करोगे। एवरी डे 12:30 पे मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं। आजकल ये क्लासेस 6:30 PM पे हो रही हैं। या फिर आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को, तो यहाँ पर भी मेरे क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाता है। ये लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और RSYT यूज़ करिए, हाथ सैनिटाइज करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच किड्स।